Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 श्रीमद् भगवद गीता 10 चैप्टर से और 10 वर्स पर चर्चा करेंगे। तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तो एक एक शब्द का अनुवाद। तेषां unto them, satata yuktanam, always engaged, bhajatam, in rendering devotional service, priti purvakam, in loving ecstasy, dadami, I give, buddhi yogam, real intelligence, tam, that, yena, by which, mam, unto me, upayanti, come, they. Translation and purport. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Purport. In this verse, the word Buddhi Yogam is very significant. We may remember that in the second chapter, the Lord instructing Arjuna said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of Buddhi Yoga. Now, Buddhi Yoga is explained. Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness, that is the highest intelligence. Buddhi means intelligence and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the material entanglement of this material world. The ultimate goal of progress is Krishna. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. One should know that the goal is Krishna, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activities, he is acting in karma yoga. When he knows that the goal is Krishna, but he takes pleasure in mental speculations to understand Krishna, he is acting in Jnana Yoga. And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in Bhakti Yoga or Buddhi Yoga, which is the complete yoga. This complete yoga is the highest perfectional stage of life. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service,
the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. Om Jnanatirandasya Jnananjanashalakhaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantritam Vandeham Shri Guru Shri Radhakanam Shri Guru Rameshamansha Shri Rupam Saryatam Sarvanaranvitam Tam Sajivam Sarvagritam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sarvana Lavita Shri Vishaka Vijancha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhe Devi Pranami Hari Priye Vancha Kalpataruvarsha Kripa Sindhu Virevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivananda Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tesham satata yuktanam vajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam yenamam upayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Hare Krishna. तो ये श्लोक दशमा अध्याय में दशमा श्लोक, ये भगवद गीता का चतुर्थ श्लोक है। एक श्लोक है चतुर्थ श्लोक की भगवद गीता 4 श्लोक है, जिसमें भगवद गीता का सार पूरा ज्ञान भगवद गीता। तो वो 10.8 से 10.11 तक 4 श्लोक है। 10.8, 9, 10, 11। तो अब इसमें ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान वर्तमान काल में अभी इस एज को इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इंटरनेट पे, फ़ोन पे, आईपैड पे, कहीं भी अगर जा रहे तो वहाँ का वेदर भी पता चल सकते हैं, क्या वेदर है, ट्रैफिक जैम है या नहीं, करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है, ऐसे 1 सेकंड में पता चल सकते हैं। मोर इंफॉर्मेशन एज कहते हैं वर्तमान का। किंतु एक प्रॉब्लम है इसी एज में भी, मृत्यु क्यों होता है ये भी उनको नहीं मालूम अभी तक। मृत्यु क्यों होता है, जन्म क्यों होता है, और इसे पार कैसे कर सकते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो भौतिक जगत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जितना भी साइंटिस्ट लोग हैं और जो भी डिस्कवरीज ये लोग करेंगे, ये 4 प्रॉब्लम कभी एक बार नहीं कर सकते। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अब हम यहाँ बैठे इस घर में, आप अगर देख लेंगे जो भी यहाँ बैठा है और बाहर जो भी है, एक दिन हम सब मर जाएंगे, हम नए शरीर बन जाए, तो वो दिन आएगा। भगवद गीता में ये ज्ञान है, मिल सकते हैं, जिससे हम पार कर सकते हैं मृत्यु, और कहीं नहीं मिल सकता। भगवद गीता में लिखा है कि जैसे कि आप लोग मालूम हैं, आप लोगों को सुना होगा कि
जब हम मिरर में देखते हैं तो हम शरीर देखते हैं। तो सब लोग वर्तमान काल में जब कोई देखता है तो ये लोग सोचते हैं कि हम ये शरीर है और इस शरीर का हम इतना देखभाल करते हैं और इसका हेल्थ, इसका मतलब बाल और क्रीम बहुत सब कुछ लगाते हैं, क्योंकि ये हम लोग सोचते हैं ये मैं हूँ। लेकिन भगवद गीता है कहता है कि हमें शरीर नहीं है, आत्मा है शरीर में। शुरू से कृष्ण या अर्जुन को बताते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। तो अब यहाँ दो चीज़ है, एक देह है और जो देह में अंदर है, देहिनो जो देह के अंदर है, दो चीज अलग है। जैसे कोई अगर गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी अलग है और ड्राइवर अलग है, तो वैसे भी हम लोग, हम और हमारे शरीर कुछ दो अलग चीज हैं, एक ही नहीं है। लेकिन जो आज का ज्ञान है, पूरा ज्ञान अगर एनालाइज करेंगे, क्या ज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जो कुछ ज्ञान है वो सब ज्ञान मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है। और हेल्थ का मेडिकल फील्ड और जितना भी फील्ड है वो बॉडी के प्लेटफॉर्म पे है। शरीर का प्लेटफॉर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, तो अब हम देख रहे हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या कि हम लोग आत्मा है लेकिन आत्मा का कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। आत्मा को खुश कैसे होता है आत्मा, और आत्मा के बारे में, आत्मा कितना बड़ा है, कहाँ पे रहता है शरीर में, ये ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब है जो कुछ भी है मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम का जीरो है, क्योंकि ये आत्मा के बारे में कुछ नहीं, ये शरीर के प्लेटफॉर्म पे है। सो प्योर स्टेट में अपना जब स्वरूप में है, और जब हमारे चेतना शुद्ध है, कृष्ण भक्त रस भावनति, जो इंग्लिश में कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, जब हमारी चेतना शुद्ध है तब हमारा ज्ञान पूर्ण है और सच्चित पूरा हमारे मतलब एग्जिस्टेंस सत्य है, जन्म और मृत्यु नहीं है, सच्चित पूरा ज्ञान है हमारे पास कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम यहाँ क्यों हैं, और आनंद, ये प्योर प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन विष्णु पुराण में लिखा है, और चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्ण भूलि से जीव भोग वांछ करे, निकटस्थ माया तारे जपटिय धारे। बंगाली में है कि जीव जब कृष्ण को भूलता है, कृष्ण भूलि से जीव भोग वांछ करे, और भोग की आशा करता है। कृष्ण भूलि से जीव भोग वांछ करे, निकटस्थ माया तारे जपटिय धारे। तब तुरंत माया जो पास में है, इतना दूर नहीं, हमेशा पास में रहता है, माया तारे जपटिय धारे, उसे नीचे भेजता है जड़ जगत में, इस जगत में। तो तुरंत एक सेकंड का भी डिले नहीं। जब भौतिक आशाएं आते हैं हमारे चेतना में, तब तुरंत हम नीचे आते हैं इस जड़ जगत में, और हमारा सच्चित आनंद असत होता है, अचित और निरानंद। अब जब हम यहाँ आए हैं तो हमारा पूरा स्ट्रगल इन तीन चीज को पूर्ण करने के लिए है, बस सच्चिदानंद वापस आने के लिए। और भगवद गीता में इसे करशति कहते हैं, करशति, बहुत हार्ड स्ट्रगल है। चैप्टर 15 में 7th वर्स कृष्ण कहते हैं कि ये जीव जो इस भौतिक जगत में कौन है, कहाँ से आए, तो कृष्ण कहता है, एक ही श्लोक में
जो पूरा फिलोसॉफिकल डिपार्टमेंट है, जो सारी यूनिवर्सिटी में 100 साल के लिए रिसर्च करें हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, एक श्लोक में भगवद गीता आंसर करता है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्शानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जीव जो इस जगत में है वे मेरे अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना, कृष्ण कहते हैं मेरे अंश है। और तो इसका मतलब है कि हम अभी कृष्ण के अंश है, तो भविष्य में हम कृष्ण बन जाएंगे। सब कुछ लोग ऐसे कहते हैं। दूसरे कहते हैं कि नहीं, हम अभी कृष्ण के अंश है लेकिन भविष्य में हम एक हो जाएंगे कृष्ण के साथ। लेकिन नहीं, एक शब्द है इस श्लोक में, सनातन। हम सनातन कृष्ण के अंश है, हमेशा सनातन ही रहेंगे। ये नहीं कि हम एक दिन कृष्ण बन जाएंगे या तो लीन हो जाएंगे कृष्ण के विग्रह। नहीं, ममैवांश जीवलोके जीवभूता सनातन, हम हमेशा कृष्ण के अंश है और सेपरेट रहेंगे। मनश्शानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो दूसरा भाग इस श्लोक का क्या कहना है कि तो अब हम यहाँ क्यों हैं अगर हम कृष्ण के अंश? क्यों? क्योंकि मनश्शानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब हमारे पास 5 इंद्रिय है, जड़ इंद्रिय और मन है, और इन 6 जैसे इंद्रिय, एक्चुअली 6 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है और मन, मनश्शानि इंद्रियाणि, षष्ठानि इंद्रियाणि का मतलब 6 इंद्रिय, क्योंकि वेद ज्ञान में मन को भी एक इंद्रिय मानते हैं। तो इन 6 इंद्रियों के अब हम सर्वेंट बन गए और बस उसके खुश करने की कोशिश करें, और ये खुश कभी नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम है। कर्षति, स्ट्रगल। कर्षति संस्कृत पता नहीं अगर हिंदी में वही शब्द है। कर्षति का मतलब है स्ट्रगल, हार्ड स्ट्रगल, डिफिकल्ट। अब हम देख रहे हैं थोड़ा खाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है इस जगत में, बस अपना पोजीशन मेंटेन करने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, सुबह से रात तक काम कर रहे हैं। और जब ब्रेक मिलता है हमें, तो वो ब्रेक में भी अब ब्रेक एक्चुअली नहीं है, दूसरा काम भी करना पड़ता है। सो कर्षति, स्ट्रगल, हार्ड स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब 6 इंद्रियां हैं, इनको खुश रखना है। ये मटीरियल लाइफ, बद्ध जीव का ये ऐसे जीव। अब सोच लो, अगर किसी के पास 6 मास्टर, बॉस, एक बॉस हम लोग काम पे जाते हैं तो एक बॉस होता है, तो उसको खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब सोच अगर 6 हैं तो कैसा जिंदगी जी। तो यही सिचुएशन है हमारा कि 6 इंद्रियों के खुश रखने के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो ये कर्षति है, हार्ड स्ट्रगल। तो अब हमारा सत नहीं रहा। एक्चुअली हो सकता है, लेकिन हम क्यों, हमारा जो माया है, माया ने हमारा नॉलेज कवर किया। अब हमें पता नहीं कि हम जीव है, हमारा मृत्यु नहीं है एक्चुअली। तो हम बस ऐसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे, और हमारा आनंद भी नहीं है, तो वो भी हम खोज कर रहे हैं इधर उधर। लोग सोचते हैं यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, तो अब tanzania में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या तो अमेरिका जाएंगे, वहाँ खुशी पाएंगे। या तो नहीं, अभी खुशी नहीं मिल रहा है, चलो गोल्फ शुरू करूँगा, या स्विमिंग जाएंगे, कुछ भी करो। सब लोग खुशी ढूंढ रहे, एक नई तरीका से। तो सब लोग का अपना सिस्टम है, सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे भगवद गीता में लेख है कि कुछ लोग एक ही जन्म में कंक्लूजन आते हैं कि नहीं, ये रियल लाइफ नहीं, कुछ इस लाइफ में कुछ गलत है, कुछ मिसिंग है। तो और कुछ दूसरे लोग सुनते हैं, हम लोग जैसे प्रचार करने भगवद गीता से, वो लोग नहीं सुनते हैं, तो वो लोग बहुत जन्म के बाद वही कंक्लूजन में आएगा। लेकिन जब माया के से बहुत लाख
रात पड़ेगा, फिर वही कंक्लूजन में आएगा। क्या कंक्लूजन लिखा है भगवद गीता में? कृष्ण कहता है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवन मम प्रपद्य। बहुनाम जन्म मतलब बहुत जन्म के बाद ज्ञानवान, जो जिसके पास अब ज्ञान आता है, एक्चुअली इस जगत में कुछ खुशी नहीं है सिर्फ सफरिंग। जब वो उस कंक्लूजन में आता है ज्ञानवम मम प्रपद्यते, फिर वो कृष्ण के शरण में आते। तो अब हम ज्ञान की बात कर रहे थे। वर्तमान काल में ज्ञान है, इतना सारा मतलब नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये ज्ञान नहीं। अगर ये ज्ञान है तो इसका मतलब ज्ञान नहीं है। क्या फायदा इस दूसरे ज्ञान का? जो कुछ ज्ञान हम मिल रहे हैं, हमारे पास है, अगर एक दिन हम मर जाएंगे, सब कुछ जाएगा, तो क्या क्या फर्क? जैसे एक एग्जाम्पल दे दूंगा। अगर आप एक कमरे में हो और कमरे को आग लग गया और हमें मालूम है हम मर जाएंगे, अब बस कुछ ही मिनट का सवाल है, फिर कोई शांत तरीके से बैठ गया और पढ़ना कुछ किताब पढ़ना शुरू करेगा, या कोई टीवी रख के देखेगा क्रिकेट? कुछ नहीं। हम सोचेंगे अभी मर जाएंगे, तो पैनिक हो जाएंगे, निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये सिचुएशन है, एक दिन हम सब मर जाएंगे ना, तो हम सब शांत में, ये माया का शक्ति, सब कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। मृत्यु तो आएगा बाद में, लेकिन आएगा ना। तो अगर वही ज्ञान नहीं है जैसे कि ये मृत्यु से छूटना है, हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है, अगर वो ज्ञान नहीं है तो इस दूसरे ज्ञान के क्या फायदा है? इतने कंफर्ट से जिएंगे, अच्छी तरह से, इतने सारे लग्जरी आइटम्स है, लेकिन मृत्यु आएगा, और मृत्यु बहुत पेनफुल है। अगर हम देख श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जैसे ये स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन बिच्छू, हाँ, अगर 10,000 बिच्छू, श्रीमद् भागवत में लिखा है 10,000 बिच्छू एक साथ हमें काटेंगे तो वो कितना दर्द होगा ना। ऐसे ही है मृत्यु, बहुत पेनफुल है, और उस वक्त कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं कर सकते। सब दर्द होता है और फीवर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ऊंचा जाता है और फिर अचानक बहुत नीचे जाता है। ये सफरिंग, मृत्यु। तो अगर वो ज्ञान नहीं है कि हम इससे कैसे छूट सकते हैं, तो दूसरा ज्ञान का कोई फायदा नहीं। अब वो ज्ञान है भगवद गीता में। सबसे पहले वो दो तरह का ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान है, और ज्ञान जो जैसे हम कुछ पुस्तक पढ़ के, भगवद गीता पढ़ के कुछ ज्ञान मिल सकते हैं। दूसरा ज्ञान है जो अंदर से मैनिफेस्ट होता है, अंदर से आते हैं, दिव्य ज्ञान हमारे दिल में प्रकट होता है। तो अब ये ज्ञान जो भगवद गीता में मिलता है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं यहाँ, ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि और दूसरी जगह कहीं से नहीं मिलेगा ये ज्ञान। कुछ हम कॉलेज में हैं, कुछ लोग कॉलेज में काम कर रहे हैं, दूसरे लोग टीवी देखते हैं, इंटरनेट, इतने नॉलेज सोर्सेज बहुत है, लेकिन ये ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। क्यों आए हैं यहाँ, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये है भगवद गीता में। तो जीवन का ये उद्देश्य है कि ये जानना है हमें, श्रीमद् भागवत में लिखा है। जीवन का क्या उद्देश्य है? जीव सतत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभि। जीव का क्या उद्देश्य है? जीव सतत्व जिज्ञासा, तत्व के बारे में जानना है। परम सत्य क्या है, कौन है परम सत्य? नार्थो यश्चेह कर्मभि, कुछ दूसरा गोल नहीं होना चाहिए अपने जीवन में, केवल अपना लाइफ को मेंटेन करना। जितना भी खाना है हमें कि ये कम से कम जीवित तो रहे, तो उतना खाना खाओ, उतना काम करो, उतना कमाओ, उतना बैलेंस रहो, और दूसरा टाइम, दूसरा एनर्जी इसी में जाना चाहिए हमारा, क्योंकि ये जीवन का उद्देश्य है। ये भगवद गीता में लिखा है, ये जीवन का उद्देश्य है।
ये ज्ञान अगर प्राप्त करेंगे कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं यहाँ, तब तुरंत हमारा स्ट्रगल, हमारा सफरिंग कम होगा। ज्ञान से हम खुशी पा सकते हैं, केवल ज्ञान से। और ये कैसा है, एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ मैं, कि जैसे जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनके पिताजी काम पे जाते हैं तो वो रोना शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्या सोचते हैं, ये पिताजी जाने तो वापस नहीं आएंगे, इनके मन में है। लेकिन छोटे जब बड़े होते हैं तब रोते नहीं, जब समझते हैं पिताजी जाएगा आप वापस आएंगे तो क्या रोने की क्या, शाम दोपहर को मिलेंगे। तो इसी तरह जब हमारा जो इतना फियरफुल कंडीशन है, भय और इग्नोरेंस, एंगर, ये बहुत कम होते हैं जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये सब कम हो, क्योंकि हम फिर हमें पता चलता है कि हम जीव हैं और हम एक्चुअली मरते नहीं, केवल शरीर मरता है। और जो खुशी की बात है और दुखी की बात, वो भी माया में, क्योंकि असली खुशी ये कैसे प्राप्त करते हैं, जब हम कुछ कनेक्शन मिलता है कृष्ण से और हम आगे बढ़ते हैं सत्य की तरफ। मतलब हम जब आगे बढ़े हैं अमृत की तरफ, जब मृत्यु नहीं होता है, अपना इटर्नल कंडीशन की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, तब ये खुशी की बात है। और दूसरे ये जो संसारिक खुशी और दुख है, वो वास्तव रूप में ये खुशी और दुख नहीं है, सब कुछ दुखी। क्योंकि खुशी भी कुछ मिनट या कुछ घंटे के लिए है सिर्फ, तब खुशी कैसे, वो भी आत्मा के प्लेटफॉर्म में होना चाहिए। हमारी खुशी अगर कृष्ण के साथ है तो वो रियल खुशी, वास्तव खुशी। भगवद गीता में, कीर्तन में, सत्संग में, और जो उत्सव है, उत्सव मनाते हैं, तो वो खुशी वहां उससे आता है, वो वास्तव में खुशी। दूसरे खुशी नहीं, लेकिन माया की शक्ति से खुशी सोचते खुशी है। जैसे अगर कोई जब दारू पीता है और ड्रंक होता है तो वो सोचता है ये खुशी है, खुशी नहीं है, क्योंकि वो नशे में है तो सोचता है ये खुशी है। लेकिन जो दूर से देख रहा है वो खुशी में नहीं, वो सोच रहा है खुशी है, लेकिन एक्चुअली सफरिंग है। तो अगर कोई जब सेल्फ रियलाइज है तो वो देखता है ये लोग सोच रहे हैं कि खुशी में है, खुशी में है। असली खुशी जब आते हैं, इतना मतलब जो ब्रह्म सुख है, इतना खुशी में कि कभी बेहोश होते हैं, हम देखते हैं ऊंचे होते हैं, क्योंकि इतना मतलब शरीर सह नहीं पाता है, इतना खुशी में। अब ये ज्ञान जब प्राप्त करेंगे, भक्ति क्या है और हमारे असली टॉप मोस्ट बेनिफिट क्या है, तब हम भक्ति शुरू करेंगे, कृष्ण भक्ति। और जब आगे बढ़ेंगे कृष्ण भक्ति में, तो अंदर से ये दिव्य ज्ञान प्रकट हो हमारे दिल में, और हम स्लोली, जैसे ये ज्ञान इस श्लोक में लिखे कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। कृष्ण कहते हैं जिसको इस श्लोक में, जिसको मेरे तरफ आना है और वो अपने पूरे प्रयास करते हैं भक्ति में आने के लिए मेरे तरफ, तो मैं उसको ज्ञान देता हूँ मेरी तरफ कैसे आओगे। कुछ लोग कहते हैं मैं भक्ति शुरू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। जब ये प्रॉब्लम कम होगा तो शुरू करोगे। तो ऐसे वेट करते हैं। मैं चैंटिंग तब शुरू करूँगा जब ये प्रॉब्लम कम होगा। मेरा ये प्रॉब्लम है तो चैंटिंग नहीं कर सकता, एक्चुअली प्रसाद नहीं खा सकता हूँ, बहुत ऐसे एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको मेरी तरफ आना है और कोशिश करोगे तो मैं सब अपने जीवन में चेंज करूँगा कि आप आ सकते हैं। क्योंकि देख लो, अगर
कुछ बेटा अपने पिताजी के घर से खो जाता है और उसके वापस आना है, अगर कुछ झगड़ा हुआ तो बेटा गया, अब बेटा को वापस आना है तो पिताजी खुश होगा ना, वो हेल्प करेगा वापस आने के लिए। ये नहीं कि वो ब्लॉक करेगा या सोचेगा ठीक है आना है तो प्लान करो अपना आने के लिए, मतलब